بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 1 مارچ 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت صحت اور وزارت داخلہ نے گزشتہ روز مشترکہ جو پریس کانفرنس کی ہے، کافی اہم پریس کانفرنس تھی۔ اس میں دونوں وزارتوں کے نمائندوں نے بہت اہم اطلاعات عوام سے شیئر کیں، جس میں بتایا گیا کہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، اس پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے۔ عوام بھی کافی حد تک اس میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو انشاءاللہ جزوی لاک ڈاؤن جلدی ختم ہو جائے گا اور انٹرنیشنل جو فلائٹس پر پابندی لگی ہے، خاص طور پر 20 ممالک جس میں انڈیا، پاکستان اور دیگر ممالک شامل ہیں، یہ بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، مگر شرط وہی ہے کہ سختی سے عمل درآمد احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے اور دیگر ممالک جہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس چلنی ہیں ان کی بھی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک مخصوص ٹیم 24 گھنٹے تمام صورتحال کا ہر گھنٹے کے لحاظ سے تجزیہ کرتی ہے اور اس کے بعد ہی فائنلی رپورٹ جاری کی جاتی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جو کہ جوازات کہلاتا ہے، اعلامیہ جاری کیا ہے کہ تمام غیر ملکی افراد کا ڈیجیٹل اقامہ ان کے ابشر اکاؤنٹ پر جاری کر دیا گیا ہے۔ اب انہیں کارڈ ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ مقیم غیر ملکیوں کے ڈیجیٹل اقامہ کے اجرا سے نہ صرف یہ کہ غیر قانونی طور پر موجود غیر ملکی افراد کو اب پکڑنے میں آسانی ہوگی، بلکہ غیر ملکی افراد سرکاری اور نجی اداروں کو کافی سہولت کے ساتھ اس ڈیجیٹل اقامے سے اپنے اقامے کے ڈیٹیل جاری کر سکتے ہیں۔ پہلی سہولت اس میں یہ ہوگی کہ مقیم غیر ملکیوں کے پاس ہوا مقیم اقامہ کارڈ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ان کی شناخت سمارٹ موبائل فون پر موجود اقامے کے ذریعے کی جا سکے گی۔ ڈیجیٹل اقامہ QR کوڈ پر مشتمل ہوگا۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کو اکثر یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ وہ اپنا اقامہ اپنے روم پر بھول جاتے تھے اور ان کو سیکیورٹی ادارے جب اقامے کے لیے روکتے تو ان کے پاس نہ موجود ہونے کی بنا پر انہیں جرمانہ ہو جاتا تھا۔ اب موبائل تو تقریباً ہر شخص کے پاس ہی ہوتا ہے، اس بنا پر یہ سہولت اب موجود ہوگی، لہٰذا فوری طور پر ابشر اکاؤنٹ بنائیں، ڈیجیٹل اقامے کا QR کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ کسی بھی بڑی مشکل سے بچ سکیں۔ سعودی وزارت بلدیہ نے دوبارہ سے تمام کمپنیوں کو ایک بار پھر خبردار کر دیا ہے کہ ایسے تمام کمپنیوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں ہوں گی جو کہ اپنے ملازمین کو رہائش کی بہتر سہولیات فراہم نہیں کر رہی ہیں۔ چیکنگ کا سلسلہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ایسی تمام کمپنیاں جو کہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہی، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مختلف افراد کو ایک کمرے میں رکھ کر وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کا سبب یہ کمپنیاں بناتی ہیں، اسی بنیاد پر یہ کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ سعودی وزارت بلدیہ نے کہا کہ کسی بھی رہائش کے مخصوص قوانین ہوتے ہیں جس میں 5 افراد کے لیے لازمی طور پر ایک واش روم ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی کا مکمل انتظام ہونا چاہیے، سینیٹائزنگ اور دیگر سپرے جو کرنے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر ان کمپنیوں کی رہائش گاہوں میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی قسم کی وہاں پر خلاف ورزی دیکھی جائے گی تو ان کمپنیوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ کوئی بھی ملازم ہمیں شکایت کر سکتا ہے، 940 ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے، اس بارے میں ہمیں اطلاع دیں تاکہ ایسی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔
सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि अभी तक ममलिकत में वबाई मर्ज कोरोना की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है, यानी स्टेबल नहीं हुई है। वबाई मर्ज कोरोना की SOPs की पाबंदी न करने का ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने इतवार को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अभी तक ममलिकत भर में 7,80,000 से ज़्यादा वबाई मर्ज कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। तर्जुमान का कहना था कि जिस मरहले से हम गुजर रहे हैं, इसकी बुनियादी ज़रूरत है कि सब लोग वबाई मर्ज कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दामात की सख्ती से पाबंदी करें। ये तमाम चीज़ें बेहद ज़रूरी और अहम हैं। वजारत तिजारत के तर्जुमान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारी आरज़ू है कि वबा पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। यह हदफ इसी सूरत में हासिल हो सकेगा जब सब वबाई मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे और जो भी मुतल्लिका कवानीन हैं उस पर अमल करके इस मर्ज से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने नमाजियों में वबाई मर्ज कोरोना के मरीज़ रिकॉर्ड पर आ जाने के बाद मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों में 2 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। 21 रोज़ के दौरान सऊदी अरब में 170 मसाजिद बंद की जा चुकी हैं, जो कि आर्जी बंदिश के बाद 158 को दोबारा से सैनिटाइजिंग और हिफ्ज़ान सेहत के इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद बहाल भी किया गया है। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने तमाम मसाजिद के नमाजियों से कहा कि लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। जो भी मसाजिद बंद की जाती हैं आर्जी तौर पर बंदिश की जाती है ताकि सफाई सुथराई करने के बाद इसे दोबारा से आवाम के लिए खोल दिया जाए। सऊदी वजारत तजारत ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कानून तजारत की खिलाफ वर्जियों की इस्लाह के लिए मोहलत देने का ऐलान कर दिया है। इतवार 28 फरवरी से 23 अगस्त तक मोहलत से फ़ायदा उठाया जा सकेगा। वजारत तजारत ने सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की रोकथाम के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए ये मोहलत दी है ताकि ऐसे अफराद जो कि इसके बावजूद बाज नहीं आएंगे, इनके खिलाफ फिर भरपूर कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करते हैं, या यूँ कहें कि सऊदी शहरी अपने नाम से मुख्तलिफ गैर मुल्कियों को कारोबार कराते हैं और कुछ रकम लेकर इन्हें सऊदी अरब में ये सहूलत फराहम करते हैं, जो कि सऊदी अरब के मौजूदा कवानीन के लिहाज से सख्ती के साथ मना है। वजारत तजारत इसे पर्दापोशी कानून के लिहाज से सख्त सज़ाएँ मुकर्रर कर चुका है। जो सऊदी या गैर मुल्की कारोबार पर पर्दापोशी करते हुए पकड़े जाएंगे, इन्हें सज़ा और इनकम टैक्स से इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। ऐसे किसी भी शख्स को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन या स्पेशलिस्ट अदालत के हवाले किया जा सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि पीर यानी 1 मार्च को सऊदी अरब के मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली रोनुमा होगी। कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि पीर को ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है, जबकि इससे पहले तेज़ हवाएं भी चलेंगी। रियाद में भी कुछ तेज़ हवाएं पिछले 24 घंटों के दौरान मुसलसल चल रही हैं, जबकि मक्कातुल मुकरमा, जज़ान, असीर और बहा में भी बारिशें होंगी। मक्कातुल मुकरमा, नजरान, रियाद और अल-शर्किया के बहुत सारे इलाके भी बारिशों की लपेट में आ जाएंगे। बयान में मज़ीद कह दिया गया है कि पीर को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड शरूरा में रिकॉर्ड हुआ, जबकि कम से कम टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड तुरैफ के इलाके में रिकॉर्ड पर आया है। सऊदी महकमे मौसमियात और दफ़ाए मदनी ने तमाम अफराद को खबरदार किया है कि बारिश के दौरान पहाड़ी सिलसिलों में जो सड़कें हैं उस पर ड्राइविंग करने से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि अक्सर बड़े पत्थर रोड पर आ जाते हैं। सऊदी अरब और यूएई में हर महीने के लिहाज से पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुत्तहिदा अरब अमारात में बाकायदा इजाफा कर दिया गया है।
ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 1 मार्च से सुपर 98 फ़ी लीटर 1.91 दरहम की बजाय अब 2.12 दरहम में दस्तयाब होगा। इसके अलावा खसूसी 95 फ़ी लीटर 1.80 दरहम की बजाय अब 2.01 दरहम में मिलेगा। इससे इसमें काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। याद रहे, अमारात में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर माह वजारत तवानाई और सनत मुकर्रर करती है। कमी बेशी का फ़ैसला आलमी तेल मंडी के जो भी कीमतें होती हैं उसी लिहाज से किया जाता है। सऊदी अरब में भी हर महीने की 10 तारीख को अरामको की जानिब से एलामिया जारी होता है। जैसे ही दोस्तों इस बारे में तफसीलात आएंगी, हर महीने के लिहाज से आप तमाम भाइयों से फ़ौरन शेयर की जाएंगी। वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर जो भी आमदोरफ्त के लिए सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, इस पर बहुत सारे लोग जालसाजी का काम भी करते हैं। एक अहम खबर दुबई में रहने वाले गैर मुल्की अफराद की जानिब से आई है कि दुबई में गैर कानूनी तौर पर वबाई मर्ज़ कोरोना का टेस्ट ख़रीदो फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में ट्रैवल एंड टूरिज़म के रीजनल एजेंट को गिरफ़्तार कर लिया है और इसके दफ्तर को सील कर दिया गया है। दुबई में तजारती अमूर और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे को इतलात मिली थी कि एक सैरो सियाहत की एजेंसी की जानिब से लोगों से फ़ीस लेकर वबाई मर्ज़ कोरोना सर्टिफिकेट फ़राहम किया जा रहा है। सऊदी अरब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, याद रखें इसके लिए मखसूस इदारे हैं, मखसूस हॉस्पिटल्स हैं। आप वहाँ से ये सर्टिफिकेट हासिल करें। ऐसे जालसाज़ों के ज़रिए अपनी रकम का ज़िया ना करें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बाकायदा तस्दीक किए जाते हैं जिस पर आप और दीगर अफराद, आपकी फैमिली हो या दोस्त अहबाब मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। पिछले महीने ये खबर भी आई थी कि पेशावर से आते हुए कुछ पाकिस्तानी भाई भी गिरफ़्तार हुए जिन्होंने जालसाजी के ज़रिए सर्टिफिकेट हासिल किए थे, और ये खबर बादशाह खान एयरपोर्ट की है। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी हों या दीगर ममालिक से आने वाले अफराद मुस्तनद हॉस्पिटल से ही अपने ये सर्टिफिकेट हासिल करें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल से आप बच सकें। मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम तरीन तहकीकात का आगाज़ किया है, क्योंकि अक्सर ये वाक़यात यहाँ देखे जा रहे हैं कि खड़ी हुई गाड़ियों को जलाया जाता है। पिछले दिनों भी कुछ ऐसी ही इतलात आई थी जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात की, तो एक शख्स जो कि नामालूम शख्स था, जिसे बाद में गिरफ़्तार किया गया, बहुत सारी गाड़ियों पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाता हुआ देखा गया। इसी तरह से अभी ताज़ा तरीन एक वाक़या रोनमा हुआ है जिसमें मुतअद्दिद गाड़ियों को जलाया गया है। इस बारे में सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। ऐसे अफराद को क़वानीन के मुताबिक सख्त सज़ाएँ भी दी जा रही हैं।